133% in the last financial year. Our total sanction in renewable energy sector was 1,36,516 crore as compared to 21,554 crore in the previous year. The renewable sector comprised of solar, let me give you a breakup of 1,36,516 crore. Solar comprised of 20,956 crore as compared to previous year's 9,301 crore. The module manufacturing, we sanctioned about 21,565 crore. Large hydro projects, 32,450 crore. Pump storage hydro projects, 28,304 crore. Green hydrogen and green ammonia projects worth 7,997 crore. Electric mobility segment, we have sanctioned 7,214 crore. Wind turbine manufacturing capacity, for which we have sanctioned about 3,195 crore. Wind power, 3,453 crore. Hybrid solar and wind, 10,098 crore. These are the highlights of the various sanctions which we have issued in renewable energy portfolio. Let me reiterate the commitment given by REC that we are committed to increase our renewable energy portfolio by 10 times. Last year, our outstanding loan from renewable energy sector was about 35,000 crore, and with this kind of sanction which has happened for amounting to 1,36,000 crore last year, and in the current year we have huge pipeline of renewable energy project more than 1,50,000 crore. We are quite confident that our asset under management from renewable energy portfolio will see tenfold increase. By the year 2030, our renewable energy portfolio will increase to about 3 lakh crore. Our total sanction, total outstanding loan, that is asset under management, has increased to 5,09,000 crore, and this year we have seen growth of 17% of our asset under management. Last year the growth under AUM was 13%. We hope to sustain this growth momentum of minimum 15 to 18% growth will happen in next 3 to 4 years. That's why we are quite confident that our asset under management will increase to about 10 lakh crore by the end of 2030. The total disbursement in the last financial 2023-24 went up by 67%. In the previous year, disbursement was about 96,846 crore. It increased to 1,61,462 crore. The revenue from operation in the annual report went up by 20% from 39,208 crore to 47,146 crore, and we have been able to achieve the MOU target, the ambitious target given by the Department of Public Enterprises. We have exceeded this MOU target. They had given target of 47,000 crore, and we have been able to achieve revenue from operation of 47,146 crore, 146 crore. Our total income has also increased by 20%. From 39,253 crore in the previous year, our total income stood at 47,214 crore. The net interest income has also gone up by 18%. Our net interest income has increased from 13,714 crore in the previous year to 16,167 crore in the financial year 2023-24. We have earned the highest ever profit after tax. Net profit has increased to 14,019 crore. It saw a jump of 27% from the previous year's 11,055 crore. The total comprehensive income of REC has increased by 49%. From 10,084 crore, it has increased to 15,063 crore. The yield
on our loan has increased by 26%, 26 BPS from 9.73% to 9.99%. The average cost we have made our endeavor to reduce the cost of funding. We have increased our external commercial borrowing because we have been able to raise external commercial borrowing below 7%, while our domestic borrowing rate has been more than 7%. With a suitable mix of external commercial borrowing, we have been able to bring down our average cost of fund by 15 BPS from 7.28%. The average cost of fund has been reduced to 7.13%. The spread has also improved by 41 BPS from 2.45% to 2.86%. It has added that our net interest margin has improved by 19 BPS from 3.38% to 3.57%, and we are quite confident that we'll be able to sustain net interest margin of more than 3.55% in the years to come. Our return on net worth was 22.17%. Our market capitalization in the last financial year has increased by 290% from 30,400 crore market capitalization. Our market capitalization at the end of 31st March 2024 was 1,18,757 crore. With the improvement in our asset quality and effective resolution of the stressed asset, we have been able to bring down our gross NPA. Our net NPA has also come down. The net NPA has come down to 0.86%, and the number of assets are in the process of resolution. A lot of operating assets like KSK Mahanadi, Hiranmaye project, then Sinnar project. The process under NCLT has already commenced, and we quite hopeful that we will be able to resolve this stressed asset in the current financial year, and we are targeting to become net zero NPA company by the end of this financial year. Our capital adequacy ratio is quite comfortable at the rate of 25.82% at the end of this financial year. Continuing with the tradition of reward to its shareholders, our board of directors has declared the final dividend of 5 rupee per equity share on face value of rupee 10 each. The total dividend for the financial year 2023-24 stands at 16 rupee per equity share. First interim dividend was 3 rupee per share, then 3.5 rupee, then 4.5, and the final dividend which we have declared today is 5 rupee per equity share. The total dividend in the financial year 2023-24 stands at 16 rupee per equity share. That is the highest ever dividend declared by REC. With this, I conclude by highlighting the financial results of REC. Now we are open for questions. बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल पूछने के लिए। मैं वीके सिंह हूँ, डायरेक्टर प्रोजेक्ट REC में। जैसा आज हमने अपने रिजल्ट प्रस्तुत किए आप सभी लोगों के समक्ष, विगत वर्ष में 23-24 में REC की परफॉर्मेंस कई मापदंडों पे बहुत अच्छी रही है। इस साल में, गए साल में हमने 3,58,000 करोड़ के सैंक्शन किए नए प्रोजेक्ट, और ये जो नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं ये बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में हैं। ये जनरेशन में है, ट्रांसमिशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, रिन्यूएबल में है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में है, ई मोबिलिटी में है, रिन्यूएबल की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, पावर पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स उनमें हैं। तो हमने वैरायटी ऑफ सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इस साल में सैंक्शन किए हैं। इसके साथ साथ हमारा डिसबर्समेंट भी इस साल में हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट गया है, और साथ ही जो प्रॉफिट है जो कि हमारे बिजनेस के साथ ही लिंक्ड है वो भी हाईएस्ट एवर 14,000 करोड़ के आसपास हम लोगों ने इस पूरे साल में प्रॉफिट किया है। सो की हाईलाइट है, मैं क्वार्टर ना बता के इसको
सालाना का जो हमारा रिज़ल्ट है वो मैं बता देता हूँ। तो हमने टोटल सेंक्शन 3,58,000 किए और हमने टोटल डिसबर्समेंट 2,68,000 किए। दोनों ही अब तक के सर्वश्रेष्ठ हमारे नंबर हैं। रिन्यूएबल सेक्टर में हमने 1,36,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हमने सेंक्शन किए, जबकि हमने इससे पिछले साल में मात्र 21,000 करोड़ के किए थे। तो जो हम कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे और अपना पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल एनर्जी को और फर्दर सेंक्शन और फर्दर डिस्बर्स करेंगे, तो वो हम कर भी रहे हैं। इसके अलावा हमने सोलर में करीब 20,956 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट सेंक्शन किए हैं। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के 51,000 करोड़ के। लार्ज हाइड्रो वो हमने करीब 32,000 से ज़्यादा करोड़ के प्रोजेक्ट हमने सेंक्शन किए हैं। पम्प्ड स्टोरेज जो कि एक नई टेक्नोलॉजी और अभी पिछले 1-2 वर्षों से देखने को मिल रहा है, उसमें हमने करीब 28,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट सेंक्शन किए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो एक नई टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम लोगों ने अभी पिछले 1 साल से सेंक्शन शुरू करना शुरू किया है। वो टेक्नोलॉजी पूरे देश के लिए नई टेक्नोलॉजी है। उसमें हमने करीब 8,000 करोड़ के 2 बड़े प्रोजेक्ट हम लोगों ने सेंक्शन किए हैं। ई मोबिलिटी में 7,200 करोड़। विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग अगेन 3,200 करोड़ क्लोज टू। विंड में हमने करीब 3,500 करोड़ के नए प्रोजेक्ट सेंक्शन किए हैं और हाइब्रिड में करीब 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सेंक्शन किए हैं। ये जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा था आपको, ये लार्जली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने थर्मल के भी प्रोजेक्ट किए हैं करीब 8,800 मेगावाट के, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के भी नंबर हमने आप लोगों के साथ में साझा किए हैं अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू, जो कि हमारी साइट पे भी अब अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा प्रोजेक्ट है और क्या कुछ प्रॉफिट है, कुछ बारे में बताना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में पहले 2 मुहिम चली थी। पहले गाँवों का विद्युतीकरण जो कि कंप्लीट हो गया है। आज देश में हर एक गाँव में बिजली है। दूसरी मुहिम थी जिसमें हमने बोला था, भारत सरकार ने बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला था कि हर घर बिजली, घर घर बिजली, और उसको सौभाग्य जो एक कार्यक्रम है उसके थ्रू हम हर घर तक लेके गए, और जितने विलिंग हाउस होल्ड थे लगभग 2.86 करोड़ जिनके घरों में बिजली नहीं थी, उनके घरों तक बिजली को पहुंचाया गया। तो ये दोनों काम गांव में हो चुके हैं। बट गांव में हम जानते हैं कि फिर और भी नए लोग होते हैं, नए घर बनते हैं, तो उनके लिए भी हम अभी RDSS में भी उनके घर के और गांव के जो रह गए, कुछ छोटे छोटे मजरे टोले इस टाइप के जो रहे हैं, वहाँ पे भी विद्युत और विद्युत से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाने का काम RDSS स्कीम में भी अभी कर रहे हैं। की बड़ी जो प्रॉब्लम होती है गांव वाले क्षेत्र में, वो होती है पानी की, सिंचाई की। तो उस तरह कोई प्रोजेक्ट अगर बताना चाहें तो वो काफ़ी सारे प्रदेशों में जो एग्रीकल्चर के लिए जो पंप यूज़ होता है, उसकी जो बिजली है, काफ़ी स्टेट ने उसमें सब्सिडी दी हुई है, वो फ्री है। तो वहाँ पे बिजली की जो खपत है उसका कोई चार्ज नहीं लगता। ऐसे काफ़ी प्रदेश हैं। कुछ प्रदेश हैं जो बहुत कम चार्ज भी लगाते हैं, सब्सिडाइज रेट पे लगाते हैं, और किसान अधिकतर उन्हीं एग्रीकल्चर पंप को यूज़ करते हैं अपने खेतों की सिंचाई वगैरह के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि वो सिंचाई का पानी जो पंप वो कर रहे हैं, लगभग सारे ही प्रदेशों में वो या तो फ्री आ रहा है या तो बहुत सब्सिडाइज रेट पे आ रहा है। दोबारा पूछिए, तासो हम ये स्लोगन हमारा नहीं है जो आप हमारे बोल रहे हैं, ये शायद हमारा स्लोगन नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम चाहते हैं कुछ अगर आप विस्तार से बता दें, किस तरह से आप तरफ से क्या कुछ चेंजेस आए, स्पेशली गाँव वगैरह में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कहीं गाँव ऐसे हैं। देखिए, देश में अब बिजली की जो व्यवस्था है काफ़ी मजबूत है। हम देख रहे हैं कि अभी आप जहाँ जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे आपने खुद देखा होगा कि बिजली की अवेलेबिलिटी काफ़ी है। हम जो हमारी जानकारी है वो लगभग 23.5 पौने 24 घंटे बिजली अर्बन एरिया में आ रही है, और लगभग 21 घंटे के आसपास गांव के एरिया में आ रही है। ये औसतन नंबर हैं। कुछ गांव में शायद कम भी आ रही होगी और कुछ गांव में 21 घंटे से ज़्यादा भी आ रही होगी। औसत जो है करीब लगभग 21 साढ़े 21 घंटे का बिजली आ रही है। तो बिजली की क्षेत्र में सारे ही यूटिलिटी ने, सारे ही प्रदेश के जो यूटिलिटी हैं, सब ने अच्छा काम किया है, और उसका रिजल्ट हम आप देखते हैं कि आज बिजली की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, हर जगह बिजली मिल रही है। काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं पूरी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी
फिर अगर तो उसमें अब देश की जब ग्रोथ होती है तो फिर बिजली सबसे बड़ा ड्राइवर है देश की ग्रोथ को करने के लिए। और उसमें जैसे जैसे ग्रोथ आगे बढ़ेगी बिजली की डिमांड भी आगे बढ़ेगी, और वो हमने देखना शुरू भी किया है। बिजली की डिमांड को बढ़ने की वजह से काफ़ी नए नए बड़े बड़े संयंत्र, जिनको हम बिजली घर बोलते हैं या पावर हाउस बोलते हैं, उनका निर्माण अभी तय किया गया है और काफ़ी निर्माणाधीन है, चल रहे हैं जिनके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। और ये आने वाले 2030 तक का हम लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ, भारत सरकार ने एक प्लान बनाया हुआ है कि 2030 तक हमारी बिजली की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। तो उस सबका एक डिटेल में प्लान है जो कि करेंटली अंडर इम्प्लीमेंटेशन। अब हमारे सीएमडी लगभग फ्री हो गए, तो अब सीएमडी के साथ भी कर लें, वरना आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। अभी भी काफी जगह है ऐसा कि सोलर लाइट उससे वंचित बताइए। Solar is emerging. Government of India has set a target under the nationally determined हाँ बस contribution सीएमडी का वो 2 मिनट 500 gigawatts सीएमडी कौन से to बोल क्या renewable energy alone. We need to achieve by 2030. So our lending operations we are aligning according to the strategy of the government of India. Last year under the renewable energy alone, 1,36,000 crores we have sanctioned. So we are on a yearly basis, there will be an exponential growth, and this year our sanction target under renewable energy alone is 1,50,000 crores, in which solar occupies a major chunk. एनवायरमेंटल एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंज से एनवायरमेंट एक बहुत बड़े फैक्टर है। नेक्स्ट कितने बजे 4 बजे? नेक्स्ट को तो टाइम हो गया 4:30। चीज़ ज़्यादा वो ना हो, और उसको देखकर आपको कैसे ग्रोथ या किस तरह से टारगेट कर रहे हैं कि एनवायरमेंट को ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। अगर उस बारे में अगर कुछ कहना चाहें आप। सब भारत सरकार के जो टारगेट हैं 500 गीगावाट 2030 तक लगाना ही लगाना है, उनको 2070 तक नेट जीरो होना ही होना है। तो हम लोगों ने भी ग्रीन जो फंडिंग है उसके लिए हम लोग एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, और पिछले साल की ग्रोथ देखें करीबन 500% हमने ज़्यादा सेंक्शन किए हैं इस बार। तो ये मोमेंटम जारी रहेगा आगे, और जिस तरह से रिन्यूएबल्स के नए प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारे पास, चाहे वो किसी भी सोर्स से आएँ, ग्रीन हाइड्रोजन आए और सोलर आए, विंड आए, हम लोग उसके लिए करेंगे प्रोजेक्ट्स फंडिंग। और REC कमिटेड है इन प्रोजेक्ट्स फंडने के लिए, और हम लोग अच्छे रेट पे उनको फंड कर रहे हैं, मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं। तो हम लोग जो देश के लिए है उसमें पूरी तरह से इस क्षेत्र में योगदान करेंगे। टारगेट्स आपने सेट की चीज़ों के अगर बताना चाहें। तो हमने ये सोचा है कि हम रिन्यूएबल में ख़ास तौर से, आज रिन्यूएबल हमारा टोटल लोन बुक में 5% से भी कम है, बट हम इसको लगभग 30% तक लेके जाएंगे। वो तभी होगा जबकि हमारा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे बना रहे। और अगर आप हमारे सैंक्शन और डिसबर्समेंट के नंबर देखें तो हमने फोकस बनाया हुआ 21,000 करोड़ जो हमने लास्ट टू लास्ट ईयर किया था, उसके अंगे से 1,37,000 करोड़ हमने इस साल में किया है, गए साल। तो इससे करके हम ये मानते हैं कि हमारी 2030 में जो लोन बुक है वो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास तक पहुँचे, केवल इन रिन्यूएबल एनर्जी। वैसे डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स ने सारी चीज़ें बताई दी हैं। तो इस साल में सीएमडी को बोलो आ जाए तब। इस साल में अगर हम देखें बोलो। तो हमारे मैंने डिस्बर्समेंट बुलाया। भी और वर्षों के से बहुत ज़्यादा रही हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 47,146 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल में 39,208 करोड़ रुपए थी, और जो 20% ज़्यादा है। और टोटल इनकम भी है 47,000, और नेट इंटरेस्ट इनकम 16,167 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल में 13,714 करोड़ रुपए थी, 18% ज़्यादा है। तो नेट प्रॉफिट इस बार ऑल टाइम है ही है, जो आज तक कभी अचीव नहीं हुआ, 14,019 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल में सिर्फ 11,055 करोड़ रुपए था, तो 27% की बढ़ोतरी हुई है। इससे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो भी 15,063 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल में 10,084 थी, जो कि 49% की बढ़ोतरी है। तो इसी तरह यील्ड जो है वो भी हमारी बढ़ी है, और कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हुई है, जिससे कि स्प्रेड और निम भी कंपैरेटिवली मेंटेन रहेंगे। तो यहाँ वाला रहने दें फिर सीएमडी का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच।